اگرچہ سال کا یہ وہ وقت تھا جب کوئٹہ کے بیشتر باسی بند کمروں کے بجائے کھلے آسمان تلے سونے کو ترجیح دیتے تھے، مگر بدقسمتی سے وہ رات عام راتوں کے مقابلے میں قدرے سرد تھی اور اسی لیے بیشتر آبادی گھروں کے اندر 4 دیواریوں میں سو رہی تھی۔ آج سے ٹھیک 87 برس قبل یعنی 30 اور 31 مئی 1935 کی درمیانی شب گھروں کے اندر سونے والے کوئٹہ کے ان باسیوں کو سنبھلنے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ ایک خوفناک گڑگڑاہٹ سنائی دی اور اس سے قبل کہ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھنے والوں کو اپنے نیچے موجود زمین کی تھر تھرانے کی کچھ وجہ سمجھ آتی، سب ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ زمین نے رات 3:03 پر ہلنا شروع کیا اور 45 سیکنڈز کے انتہائی مختصر دورانیے میں کوئٹہ شہر اور سول لائنز کی لگ بھگ تمام عمارتیں زمیں بوس ہو چکی تھیں۔ 7.7 شدت کا زلزلہ پورے شہر کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ زلزلے کے بعد ابتدائی چند دنوں میں شہر کی بچی کچی انتظامیہ اور فوج نے عمارتوں اور گھروں سے لاشیں سمیٹنے کا کام جاری رکھا، مگر 4 جون تک ملبے تلے دبی لاشوں سے اٹھنے والا تعفن اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ میڈیکل افسران کے مشورے کے بعد تباہ شدہ شہر کو آئندہ 40 دن کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا، تاکہ گلی سڑی لاشوں کے باعث بیماریاں پھیلنے کا خدشہ کم سے کم کیا جا سکے۔ یہ تفصیلات سن 1935 میں کوئٹہ کے ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ کیپٹن LAG پنہے کی رپورٹ دی کوئٹہ ارتھکویک آف 31 میں 1935 سے لی گئی ہے، جو انہوں نے اعلیٰ حکام کو ارسال کی تھی۔ اس زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی ملبے کے ڈھیر تلے تلاش اور لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا کام اتنا مشکل تھا کہ ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ نے اس حوالے سے ایک مکمل باب لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1 جون 1935 کی صبح سے لاشوں کو اٹھانے کا کام شروع کیا گیا اور 3 جون تک لگ بھگ 5000 لاشیں اٹھائی گئیں، جنہیں لاریوں کے ذریعے شہر سے منتقل کیا گیا۔ مسلمان میتوں کی شہر کے جنوب میں واقع قبرستانوں میں تدفین ہوئی، جبکہ ہندو شہریوں کی میتوں کے کریا کرم کے لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی شمشان گھاٹ بنائے گئے اور میتوں کو جلانے کے لیے تمام دستیاب ذرائع سے لکڑیوں کا ہنگامی بنیادوں پر بندوبست کیا گیا۔ سن 2005 میں BBC میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی جیولوجیکل سروے نے اس زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کا تعین 60,000 کے لگ بھگ کیا ہے۔ ماہر ارضیات اور بلوچستان یونیورسٹی کے سابق ڈین فیکلٹی آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر دین محمد کاکڑ کی تحقیق کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7.7 تھی اور زیر زمین گہرائی فقط 30 کلومیٹر تھی۔ اس زلزلے کے آنے کے صحیح وقت کے حوالے سے متضاد آراء ہیں، مگر محکمہ موسمیات کوئٹہ کے دفتر میں موجود ایک گھڑیال اس سلسلے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ گھڑیال گزشتہ 86 برس سے خاموش ہے، کیونکہ یہ اس المناک واقعے کا اہم گواہ ہے۔ 31 مئی 1935 کو صبح 3:04 پر یہ گھڑیال اس وقت خاموش ہو گیا تھا جب زلزلے کے باعث اسے نقصان پہنچا۔ بعد ازاں اسے چلانے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ اسے محفوظ کر لیا گیا، کیونکہ اس پر وہ وقت محفوظ ہے جب کوئٹہ شہر پر قیامت ٹوٹی۔ یاد رہے کہ ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ کیپٹن LAG پنہے کی رپورٹ میں زلزلے کا وقت 3:03 بتایا گیا ہے۔ ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ کی رپورٹ کے مطابق اس زلزلے سے قبل کسی بڑے تنبیہی جھٹکے یعنی وارننگ شاکس کے حوالے سے کوئی مخصوص اطلاع نہیں ملی تھی، مگر بعد ازاں زندہ بچ جانے والے کئی لوگوں نے میڈیا اور دوسری جگہوں پر جو بیانات دیے، ان کے مطابق انہوں نے بڑے جھٹکے سے پہلے مختلف تاریخوں میں زلزلے کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے محسوس کیے تھے۔ رپورٹ کے مطابق چونکہ کوئٹہ میں سال بھر معمولی جھٹکے محسوس کیے جاتے رہتے ہیں، اس لیے ان چھوٹے جھٹکوں کا خاص نوٹس نہیں لیا گیا۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ رات کو آنے والے بڑے جھٹکے کے بعد بہت سے آفٹر شاکس آئے، مگر ان میں نقصان نہیں ہوا، کیونکہ شہر میں کوئی عمارت مکمل حالت میں موجود ہی نہیں تھی جو ان آفٹر شاکس کے نتیجے میں متاثر ہوتی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1-2 افراد نے حکام کو یہ بھی بتایا کہ زلزلے کے دن انہوں نے گھروں میں پرندوں اور دیگر جانوروں میں عام دنوں کی بنسبت بے چینی محسوس کی، اور اس لیے انہوں نے جانوروں کے کمروں کے دروازے کھول دیے تاکہ وہ باہر نکل سکیں۔ اس زلزلے کے حوالے سے تحقیق کرنے والے سعید کرد نے اپنے ایک مضمون میں کوئٹہ کے ایک کسائی کا حوالہ دیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ کسائی عموماً رات کو دیر سے گوشت کی مارکیٹ سے گھر جاتا تھا۔ 31 مئی کی شب جب وہ کوئٹہ کی سنسان گلیوں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ عام دنوں کے برعکس کتے بہت زیادہ بھونک رہے تھے۔ اس کسائی نے یہ رپورٹ دی تھی کہ رات 3 بجے کے قریب انہوں نے ایک خوفناک گڑگڑاہٹ سنی اور اس کے ساتھ عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنتے دیکھا۔ اس وقت کوئٹہ گیریسن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ GOC جنرل کارسلیک تھے۔ ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے زلزلے کے فوراً بعد کنٹرول روم سے رابطہ کیا تو انہیں بتایا گیا کہ شہر گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں اور خیال یہ ہے کہ شہر تباہ ہو چکا ہے۔
जनरल कार्सलेक ने फौरी तौर पर इमरजेंसी का ऐलान किया और फौज को स्टैंड बाय रखने का हुक्म जारी किया। ताहम एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट की रिपोर्ट में फौज ने आधे घंटे में शहर की जानिब मूव करना शुरू किया था। मुहक्किक और साबिक डायरेक्टर जनरल महकमा ताल्लुकात आमा हुकूमत बलूचिस्तान नूर खान मोहम्मद हुस्नी के मुताबिक ज़लज़ले की इत्तला 31 मई की शब ही शिमला पहुंचा दी गई थी। इस इत्तला के बाद हुकूमत की जानिब से अगले रोज़ प्रेस को एक मुख्तसर सा बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि क्वेटा शहर तबाह हो गया है और चंद हजार नफूस जिंदा बच गए हैं। मोहम्मद हुस्नी के मुताबिक 1 जून 1935 को ज़लज़ले के हवाले से मुकर्रर करदा राब्ता अफसर व अफसर इत्तलात NCO मोर्जी ने बज़रिया टेलीफोन दिल्ली में महकमा इंफॉर्मेशन के जरिए बयान जारी कराया कि क्वेटा के अलावा एक बड़े इलाके में ज़लज़ला आया है, यानी दीगर शहर भी इससे मुतासिर हुए हैं। बलूचिस्तान के जो इलाके अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थे, इनको ब्रिटिश बलूचिस्तान कहा जाता था। इन्हीं इलाकों बिलखुसूस अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों के साथ अंग्रेज़ों ने साबिक नाजी जर्मनी और साबिक सोवियत यूनियन की पेशकदमी को रोकने के लिए फौजी छावनियाँ बनाई थीं, जिनमें से सबसे बड़ी छावनी क्वेटा की थी। ये छावनी शहर से करीब ही वाक़ है, लेकिन इस तबाहकुन ज़लज़ले में ये महफूज रही। माहिर अर्जियात और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के साबिक डीन फैकल्टी ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर दीन मोहम्मद काकड़ कहते हैं कि सन 1935 के ज़लज़ले की फॉल्ट लाइन शहर के मगरिब में बरूरी के इलाके में थी। जिस इलाके में ये फॉल्ट लाइन थी, वहाँ ज़मीन में गहरी दरार पड़ी, जिसके आसार अब भी हैं और ये क्वेटा से 40 से 50 किलोमीटर दूर मस्तूम के इलाके में ज़्यादा वाज़ेह हैं। उन्होंने बताया फौजी छावनी फॉल्ट लाइन से कुछ फासले पर थी और ये छावनी जिस इलाके में कायम की गई थी वो पहाड़ के करीब था, जहाँ ज़मीन सख्त थी, जबकि छावनी और शहर के दरमियान हबीब नाले समेत 1-2 नाले और थे। चूँकि हबीब नाले और दूसरे नालों की वजह से इनमें ब्रेक आया, इसीलिए छावनी से पहले ज़लज़ले की शिद्दत कम हो चुकी थी। फौजी छावनी तो ज़लज़ले से बच गई, लेकिन रॉयल एयरफोर्स के हवाले से सूरत हाल मुख्तलिफ थी। छावनी के बरक्स एयरफोर्स की तनसीबात शहर के शुमाल मगरिब में थी, जो कि फॉल्ट लाइन के करीब होने की वजह से बुरी तरह से तबाह हुई। पॉलिटिकल एजेंट की रिपोर्ट के मुताबिक क्वेटा में तैनात एयरफोर्स एहलकारों में निस्फ हलाक या जख्मी हुए थे। इस रिपोर्ट में एयरफोर्स में होने वाली हलाकतों की कोई तादाद नहीं बताई गई, ताहम ये ज़रूर लिखा है कि एंकर्स में मौजूद 27 तैयारों में से सिर्फ 3 काबिले इस्तेमाल रहे। चूँकि शदीद ज़लज़ले की वजह से शहर का वाहिद बिजली घर तबाह हुआ था, इसलिए ज़लज़ले के बाद शहर मुकम्मल तारीकी में डूब गया था। फौजी छावनी से निकलने वाले अहलकार जब अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर छावनी से मुतसल बरूस रोड यानी मौजूदा जिन्ना रोड के कोने पर पहुंचे, तो गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की हेडलाइट्स वो वाहिद जरिया थी जिनकी मदद से उन्होंने शहर की तबाही का पहला नज़ारा किया। एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट की रिपोर्ट के मुताबिक शहर की पुलिस और सिविलियन इंतजामिया का सफाया हो गया था। GOC ने तमाम दस्तयाब वसाइल ब्रिटिश बलूचिस्तान में एजेंट टू गवर्नर जनरल सर नॉर्मन के डिस्पोजल पर छोड़ दिए थे। जिन फौजी एहलकारों की शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन में ज़रूरत नहीं थी, उनको शहर में गश्त पर लगा दिया गया, ताकि पुलिस और सिविलियन इंतजामिया की अदम मौजूदगी में शहर में किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या न पेश आ सके। एक आर्जी पुलिस फोर्स भी कायम की गई, जिसकी जिम्मेदारी उन शहरियों की मदद करना था जो इस ज़लज़ले में जिंदा बच गए थे, मगर जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुश्किल वक्त में क्या करें। इस आर्जी पुलिस फोर्स को चलाने की जिम्मेदारी उन फौजी स्टूडेंट अफसरों को सौंपी गई थी जो कि कोर्स के लिए स्टाफ कॉलेज आए हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक एजेंट टू गवर्नर जनरल सर नॉर्मन ने यह महसूस किया कि अफसरों और एहलकारों की कमी की वजह से सिविलियन इंतजामिया शहर के इंतजाम को नहीं चला सकती, इसलिए उन्होंने 31 मई को ही शहर का कंट्रोल जनरल क्लार्क्स के हवाले किया, जिन्होंने क्वेटा में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया। जहां शहर में आर्जी पुलिस फोर्स कायम की गई, वहीं पंजाब और साबिक NWFP यानी मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने क्वेटा के लिए स्पेशल पुलिस फोर्सेस को रवाना किया। इन दोनों इलाकों से पुलिस फोर्स के आने के बाद ये महसूस किया गया कि अब सिविलियन अथॉरिटी दोबारा शहर की इंतजामिया को संभाल सकती है, लिहाजा सिर्फ 4 हफ्ते बाद ही यानी 28 जून को मार्शल लॉ खत्म कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलीफ हेडक्वार्टर में इस हवाले से जो इजलास हुआ था, इसमें 6 तरजीहात तय की गईं, जिनमें से पहली ये थी कि जो लोग जिंदा बच गए हैं इनको रेस्क्यू किया जाए। इस मकसद के लिए शहर को 8 सेक्टर्स में तकसीम किया गया और फौज के मुख्तलिफ यूनिटों को इस काम पर लगा दिया गया। इसी सिलसिले में एक मुश्किल रुकावट ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी थी, क्योंकि शहर में मुसाफिर लारियों समेत जो सरकारी और प्राइवेट गाड़ियां थीं, इनमें से बेशतर ज़लज़ले की वजह से तबाह हो गई थीं। ताहम इस ज़लज़ले में बच जाने वाले फौजी छावनी में फौज की गाड़ियों की एक बड़ी तादाद के अलावा अफसरों की प्राइवेट गाड़ियां थीं, जिनको शहर में रेस्क्यू और फौज की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल में लाया गया।
3 जून तक शहरी अपनी मदद आप और फौज की मदद से मलबे के नीचे अपने प्यारों की लाशों और कीमती सामान को तलाश करने का काम करते रहे, मगर फिर लाशों से उठने वाले ताफुन और इसके नतीजे में बीमारियों के फैलाव के पेश नज़र बच जाने वालों को शहर से निकालकर पनाह गज़ीनों को रेस कोर्स कैंप में मुंतकिल किया गया, जहां इनके लिए रिहाइश का इंतज़ाम किया गया था। एक अहम मसला जो दरपेश था वो क्वेटा शहर और नवाही इलाकों में जिंदा बच जाने वालों को राशन, कपड़ों और तिबी इमदाद की फराहमी करना था, जिसे स्टाफ कॉलेज क्वेटा के कर्नल हवास को सौंपा गया। इस मकसद के लिए 2 गाड़ियां इस्तेमाल में लाई गईं, जिनमें से एक में खुराक जबकि दूसरी में तिब्बी अशिया थीं। इस वक्त खुराक ज़ख़ीरा करने का बड़ा ज़रिया खुराक के डिपो हुआ करते थे और हुकाम ने पहला कदम ये उठाया कि इजनास को वहाँ से निकाल कर महफूज किया। इसके अलावा सिविलियन आबादी के लिए खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फ़ौज के राशन में कमी की गई। रेस कोर्स कैंप में पनाह लिए हुए अफराद की तादाद 10,000 के लगभग थी। रिपोर्ट के मुताबिक गॉलब्रेथ स्पिनी के मुकाम पर एक डेयरी फार्म कायम किया गया था और ज़लज़ले में बच जाने वाली गायें और भैंसें जो शहर में आवारा फिर रही थीं, उनको इस डेयरी फार्म में लाया गया। इसके अलावा जानवरों के बहुत से मालिकान भी अपने माल मवेशियों को संभालने से कासिर थे। माल मवेशियों को संभाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने मवेशी हुकाम के हवाले कर दिए थे। इन जानवरों की जब मजीद ज़रूरत नहीं रही तो उनको उनके मालिकान के हवाले किया गया। इस डेयरी फार्म के इंचार्ज ज़रई अफसर मुस्तफ़ा थे। रिपोर्ट में उनके काम को सराहा गया है। नूर खान मोहम्मद हुस्नी की तहकीक के मुताबिक हुकाम की जानिब से जारी करदा पहली रिपोर्ट में मरने वालों की तादाद सही नहीं लिखी गई। इस ज़लज़ले के 3 माह बाद शाया होने वाली रिपोर्ट में मरने वालों की तादाद 25 से 30,000 के दरमियान लिखी गई, जबकि 15 माह बाद शाया होने वाली एक सरकारी रिपोर्ट में शहर की आबादी 50,000 और मरने वालों की तादाद 40,000 बयान की गई।